चलिए तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग बस पेडॉन का बात ही कर रहे थे और हमारा सेशन एंड हो गया था. So today in this lecture we will be continuing after pedon. So what exactly is pedon? So we discussed that it is a 3D smallest 3D structure of a soil is called pedon. The smallest 3D structure of a soil is called pedon. So again, most soil possesses 3-4 horizons and a number of sub-horizons. So what do we mean by 3-4 horizons and sub-horizons? So let me explain it. Horizons means you can say divisions and imaginary divisions, and in all these 3-4 divisions there are subdivisions also. So it is known as horizons and subhorizons. Let me explain it a little in little depth. So I'll be continuing with that again. Now horizons are 3-4 in number, and we discussed about soil profiling in the last class. So in general, soil profiling consists of 4-5 horizons. So what I think of now is O, A, B, C, and R. There are 5 horizons. Okay. Now again, let me start with the soil formation. Weathering. It is a process in which rocks are broken down into smaller particles of soil, and this weathering, that is breaking down of rocks, is due to three process, or you may say by three process. First is physical weathering. If any physical agent is causing weathering, then it is known as physical weathering. For example, strong wind, alternate heating and cooling means heating causes expansion, cooling causes contraction. So alternate expansion and contraction, rhythmic contraction and expansion of the rock also leads to widening of cracks. You all know there are certain cracks in the rocks, and these contraction and expansions lead to widening of cracks. As the crack widens, many dying, decaying materials get there, and what you say is that they decompose, releasing acids, and these acids further decompose the rock. So action of frost, snow, rain, wind, alternate heating and cooling, all these comes under physical weathering. Then comes the chemical weathering. Weathering due to chemical process. For example, uh, let it be like a rock is made up of something like it is a carbonate rock. So carbonate rock, if it is present near any water body, the carbonate present in the rock will slowly dissolve with the water body, and this dissolution of that rock into that water body leads to weakening of rock, and slowly it will be break down into soil. So oxidation, reduction, carbonation, and solubilization to break the rock. It is a part of chemical weathering. And now biological weathering. We studied in chapter ecosystem the process of succession. We studied that lichens and mosses usually colonize in an area where no previous life form ever colonized. What they do is they grow in such barren area, make soil at that place, and you can say they increase the amount of nutrients in that area, and it overall leads to the formation of fertile soil, and thus soil is formed. So now, as of now, as we formed soil, now the next main thing is that we need to form humus. Now, as you all know, humus is fertile organic matter, isn't it? Humus is fertile organic matter. So what do you mean by humification? So addition of organic matter or humus into that weathered rock, the rock which weathered to form soil. Now it is infertile. Why? Because it has only inorganic nutrients. There is no organic nutrient present in that soil, and that is why it is not suitable for growth of any kind of vegetation. So to increase the vegetation in that area, increase the vegetation in that area,
the humification occurs. In this, organic matter are added into this weathered rock. Now, uh, one thing which I must say, that a very important question I can see here is, humus is acidic, colloidal, and it is reservoir of nutrient. I guess this acidic and reservoir of nutrient is being asked in NEET 2018 or 19, something like this. Okay, so it is again very essential for starting biological activities and nutrient cycling. Main functions of humus are biogeochemical cycling, means starting of biological and chemical combination of biological and chemical recycling. Preventing soil from compaction, means sometimes you must have seen that soils are being compacted. They are compacted enough to form big lumps of soil. So that is, it is of no use, no? That is why farmers often plow their fields. So the soil must not be compacted. So this humus prevents the soil from compaction. Improving aeration, means they improve the air gaps and water holding capacity of the soil and make soil spongy. So as to make it easy for penetration for roots of the plant. Okay. Now, now we studied about formation of rock. Now formation of soil, and then formation of humus, and the process by which humus is being added into that soil. Now the next term is elevation and elevation. Now these two are methods of transfer of soil. Now soil is formed at some other place, a place where big rocks are present. Now it should reach to our fields, our agricultural fields, by the natural process, so as that we can do agriculture. So elevation are process of transport of soil. These are process of transport of soil. So elevation and elevation occurs by two methods. I mean, elevation is one method and elevation is another method. Now, first is elevation. Elevation is washing down of materials from upper strata. Okay. So, wait. I guess there is a mistake. It is not process of transport of soil. It is actually process of transport of nutrients into the soil. Nutrients or minerals, you can say. Nutrients or minerals. Yes. So elevation is washing down of upper materials and they go to the lower material. For example, this is a strata of soil. Okay, let me draw it. I guess it will be better for you to understand. So this much is the width of a soil at some place. So the mineral present in the upper strata, if they percolate or move down into the lower strata, then it is known as eluviation. Okay, washing down of minerals from upper strata, upper layer of soil, to lower layer of soil. Okay. Now again, uh, elevation, washing down of movement, means when mineral starts moving at this places, then it is called eluviation. And when this mineral, which is elevated at the upper portion, or you may say upper strata of the soil, when it gets deposited to the lower strata, then this deposition is known as elevation. Elevation. Okay. मिट्टी में अलग अलग लेयर है, ये अलग अलग लेयर में से जो ऊपर के लेयर वाला मिनरल है, जब वो वहां से निकलता है तो उसको बोलते हैं इल्यूविएशन। और जब वो वहां से निकलकर नीचे मूव करा तब तक ठीक है, बट जैसे ही नीचे मूव करने के बाद नीचे के किसी लेयर में सेटल डाउन होने लगा, तब उसी मूवमेंट के बाद उस सेटलिंग डाउन ऑफ मिनरल को बोलते हैं इल्यूविएशन। ठीक है, चलिए नाउ अगेन इसको क्लियर कर दे रहा हूं। यस, मिनरल मैटर। वेट, लेट मी सी लगातार।
Okay, then what do you mean by mineral matter? So inorganic substances present as particles of different size and compound. Wait. Composition. Then it is called mineral matter. Now again, what is gravel? Gravel is fine pebbles of size 2 to 10 millimeter. Sand, it is more smaller than gravel. Sand is chemically silicon dioxide, and this silicon is responsible for formation of glass. So glass is made by sand, mind it. So it consists of grains of quartz or silicon dioxide, and its size varies from 0.02 to 2 millimeter. Sand is chemically inert. This is important. Again, in biologically, they are very important as they allow quick percolation of rain or irrigation water, and aeration is also good in this part. Aeration is also good in this part. Okay. Okay. Now again, slit. Slit is formed by fine grains of sand. Even smaller particles than the size of sand grain are forming slit. And the slit size is 0.002 millimeter to 0.02 millimeter. It is again chemically inert. Now clay. Mind it, gravel are the bigger pebbles. Oh, I guess अगर आपके घर के आसपास कभी बालू आया हो और आप नोटिस करे हो, तो बालू में कहीं के बीच में पत्थर होता है, वो पत्थर को बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल से छोटा अगर सोन नदी का बालू है, गोल्डन कलर का जो बालू होता है वो है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा है। और अगर गंगा नदी का बालू है तो वो और पतला होता है। एंड यू माइट हैव सीन कि जब पिलर बनता है जमीन के अंदर, तो उसको भरने के लिए वो उस सिल्वर कलर वाला बालू यूज करते हैं। छोटा बालू 0.02, बड़ा बालू 2 मिलीमीटर का। अच्छा, अब अगर आप मिट्टी का धूल देखें, मिट्टी का बहुत फाइन पार्टिकल अगर डस्ट के फॉर्म में आप देखें, तो ये जो मिट्टी होता है, इसका साइज 0.002 से 0.02 मिलीमीटर होता है। स्लिट मिट्टी से थोड़ा सा बड़ा, आई मीन मिट्टी को ही अगर आप देखोगे ना, तो कुछ मिट्टी थोड़ा खुरदुरा होगा, वो स्प्लिट होता है। क्ले और होता है छोटा। तो जो क्ले होता है वो एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन ये सब मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, साइज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्ले होता है वो केमिकली एक्टिव होता है। क्ले इज केमिकली एक्टिव। ओके, सो क्ले हैज वेरी फाइन इंटरस्पेस दैट कैन होल्ड एबंडेंट वाटर। सो अगर हम सॉइल में बात करें, तो इन चारों में से कौन सा वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी रखता है? वो क्ले रखता है। एयरेशन बहुत पुअर होता है, मतलब हवा नहीं आ सकता अंदर में। हवा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी तक में जो भी पढ़े उसमें से सिर्फ और सिर्फ सैंड ही है जो एयरेशन अच्छा प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मिट्टी में बालू का भी थोड़ा मात्रा होना जरूरी है। अगर सिर्फ मिट्टी रहेगा, सिर्फ क्ले रहेगा, तो वहां भी एयरेशन सही से नहीं होगा, वो दिक्कत करेगा। ठीक है। नाउ अगेन सॉइल एयर, सॉइल में जो एयर होता है उसका बात हम लोग कर रहे हैं। So it is present as in macropores with size of 10 to 20 to 50 micrometer. A good soil should have 25% air by volume. This is very important. A good soil, that is a soil which is you can say a soil which is uh, supporting more growth or which is more fertile, must have almost 25% of air by volume. So this soil air is required for respiration by roots. Okay. टेल मी अ केस जिसमें कि सॉइल में एयर वॉल्यूम सही नहीं है, तो वो एरिया को क्या बोलते हैं? और दूसरा बात, उस एरिया में जो भी वेजिटेशन होता है, उस वेजिटेशन को क्या बोलते हैं? उसका कुछ खासियत? अच्छा ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बता रहा हूँ। वैसा एरिया जहाँ सॉइल में एयर बहुत कम है उसको बोलते हैं मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में जो वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं मैनग्रोव्स। और इन मैनग्रोव्स में खास बात यह है कि इनका रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी जमीन के अंदर जाने के बजाय जमीन के बाहर आता है। एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर्स, एंड दीज निमेटोफोर्स हैव स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन देम, एंड दैट पोर्स आर नोन एज न्यूमैथोड्स। व्हाट डू यू what is the function of that pore? That pore helps in atmospheric air exchange in the root for respiration. Okay.
हम सभी सब पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th में. Okay, so again, soil air is richer in carbon dioxide and poorer in oxygen. So the air which is present in the soil has more amount of carbon dioxide than oxygen. Again, now what do you mean by residual soil? Residual soil are developed in that place only. I mean कि अगर जैसे मान लो मेरा कोई खेत है और मेरे खेत में एक चट्टान भी था, एक रॉक भी था, तो उस रॉक से जो मिट्टी बनकर मेरे खेत में आया उस मिट्टी को बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल. और वैसा मिट्टी जो बना कहीं और था मेरे खेत में आया है सिर्फ, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. अगेन, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है अगर वो ग्रेविटी की वजह से हुआ तो उसको बोलते हैं कॉल्यूवियल. अब बोलो सर ग्रेविटी से सॉइल कैसे आता है? ये देखो, यहाँ पे कोई रॉक टूटा था, रॉक टूटने के बाद यहाँ सॉइल बना जो कि धीरे 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 यहाँ आ गई. तो ये ग्रेविटी के थ्रू मूवमेंट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कॉल्यूवियल. कॉल्यूवियल. अच्छा, रनिंग वाटर नदी के साथ जो आता है उसको बोलते हैं एल्यूवियल. हवा के साथ जो आता है इओलियन. और ग्लेशियर के साथ जो आता है उसको बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगेन, सॉइल टेक्सचर तीन तरह का मेनली होता है. पहला सैंडी सॉइल जिसमें 80% से अधिक बालू और बाकी जो है वो स्लेट और क्ले है. ये पोरस होते हैं, लूज होते हैं, जाहिर सा बात है बालू ज्यादा है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होता है. केमिकल न्यूट्रिशन भी बहुत कम होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस ये सब है ही नहीं. नेक्स्ट, क्लेई सॉइल. सॉइल में 40-50% क्ले होता है, बाकी स्लेट और सैंड बहुत कम होता है. अच्छा, क्ले है तो इसमें कैपिलरी पोर्स ज्यादा होगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये लॉस्ट वाटर जो होगा ये मतलब क्या बोले, अगर पानी एब्जॉर्ब करा तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपैंड करेगा. रिलैक्स एक्सपैंड ज्यादा सही टर्म होगा. और अगर पानी एब्जॉर्ब करने के बजाय लूज करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो उसका जो अपर लेयर होता है वो फैलता और कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वाटर उसने एब्जॉर्ब करा है या उसने वाटर लॉस करा है. ठीक है, चलिए. अब इसमें एक और खास बात, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी बट एयरेशन इज प्योर. जैसा कि हम आपको बताया इसमें मिट्टी में क्ले ज्यादा है तो चिपक जाएगा. ठीक है, बालू होने से थोड़ा गैप बना होता है तो वो तो ठीक है बट ओवरऑल सही नहीं है क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा. नेक्स्ट, थर्ड वन इज लोमी सॉइल. लोम सॉइल को हम लोग लोमी लोमी सॉइल भी बोलते हैं. Again, this contains 20% clay, 40% sand, and 40% slate. So, good mineral nutrition, aeration, and hydration. So, loamy soil are best for plant growth. Important. This topic I don't think is of any use. You can read it, but do not take it that much seriously. Now, the next part is very, very, very much important. Next, coming to response to abiotic factors. Now, let me tell you one thing. Response to abiotic factor means whenever the conditions around you are not that much good, there can be three processes. First, either you regulate, means you try to maintain your internal conditions constant. Okay. The second is confirm that you are according to the surrounding. And third is partial regulators, means you can control but up to a certain limit. After that you say no, I cannot control it more, and you begin to confirm that you start confirming that whatever is the surrounding I will be like it. देखो, उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट उतने अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा लेकिन अभी आ जाएगा. अब हिंदी में हम एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन तरीके से रिएक्ट करता है. पहला बात ये है, जो ये अभी भूमिका चल रहा है उसके बारे में बात नहीं कर कि हम सभी लिविंग और हमारे अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है. इसका नाम है
होम्योस्टेसिस मीन्स वी ट्राई टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, हम अपना इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म कितने अच्छे से अपने कंडीशंस को मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बेसिस पे तीन तरह का होता है। पहला, कन्फर्मर, ये अपने बॉडी को सराउंडिंग के अगेंस्ट नहीं कर पाता। मतलब ये, जैसे मान लो टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना पे मेंटेन रखते हैं? 98.6। चाहे कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी ठंडा पड़े, वी रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम है रेगुलेटर। अच्छा, दूसरा केस होता है कन्फर्मर। ये क्या करता है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि देखो, हम लोग वार्म ब्लडेड है, आपको पता है कि हमारे में एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है। और ये एनर्जी नीड्स किस बात का है? तो इस बात का भी आपको जानकारी है कि हमारे बॉडी में एनर्जी नीड ज्यादा इस बात के लिए है क्योंकि हमारे बॉडी में हमें कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। गर्मी ज्यादा है तो बॉडी को लगातार ठंडा करने में एनर्जी वेस्ट करो, टेम्परेचर कम है तो लगातार गर्म करने में एनर्जी वेस्ट करो। बट वी ट्राई टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके। बट जैसे लिजर्ड, लिजर्ड इन सभी में क्या होता है कि ये इसके पास इतना एनर्जी नहीं होता कि ये एनर्जी को संभाल के रख पाए, या सीधा बोले तो मेंटेन करने वाला काम खासकर टेम्परेचर के हिसाब से दो ही ग्रुप कर पाता है, मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल और बर्ड के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, इतना एनर्जी नहीं होता उनके पास। वो क्या करते हैं कि जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो भी सराउंडिंग कंडीशन है, उसके हिसाब से खुद को भी ढाल लेते हैं। मतलब गर्मी ज्यादा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, गर्मी कम है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। वो मेंटेन करने में एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाते, इतना एनर्जी उनके पास है ही नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ठीक है। तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर। ये क्या करता है कि कोशिश करता है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, इस ऑर्गेनिज्म का खास बात क्या है कि ये 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो मान लो सराउंडिंग 10 था तो अपने आप को गर्म करके 30 मेंटेन किए हुए, 20 हुआ और हल्का कम गर्म करके 30 मेंटेन किए हुए, 30 हुआ मेंटेन किए हुए, 40 हुआ तो ठंडा करके मेंटेन किए हुए, 50 हुआ तो भी ठंडा करके मेंटेन किया, लेकिन सराउंडिंग हो गया 60। अब ये क्या करता है कि बोलता है भाई साहब अब इतना एनर्जी नहीं है कि हम 60 वाले टेम्परेचर सराउंडिंग में अपना बॉडी टेम्परेचर 30 मेंटेन कर ले। तो वो क्या करता है, कन्फर्म कर लेता है, छोड़ देता है, उसके बाद हिम्मत हार जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग वाला हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में कुछ हद तक तो कंट्रोल किया, बट एक लिमिट के बाद वो भी छोड़ दिया, जैसा सराउंडिंग वैसा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर देता हूँ अच्छे से, बता तो चुका ही हूँ। कहाँ गया यार माउस, यस मिला। ये ग्राफ आप देख पा रहे हो ना, ये ग्राफ एक बार देखो यार, अच्छा लगेगा हमको भी। देखो इंटरनल कंडीशन, ये है एक्सटर्नल लेवल। आप देख रहे हो, पहला कन्फर्मर, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, देखो ये अपना इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखे हुए, सॉरी जैसे ये गलत बोल रहे हैं हम, ये गलत बोल रहे हैं, उल्टा हो गया। कन्फर्मर है ना, रेगुलेटर थोड़े ना। एक्सटर्नल टेम्परेचर बदल रहा है, देखो इंटरनल भी सेम, एक्सटर्नल यहाँ, इंटरनल भी यहाँ, एक्सटर्नल यहाँ, इंटरनल भी यहाँ। देख पा रहे हो, ये लगातार चेंज हो रहा है। बट अगर हम बात करें रेगुलेटर का, एक्सटर्नल कंडीशन कुछ भी हो, इंटरनल सेम है, फिक्स। पार्शियल रेगुलेटर को देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल में यहां तक तो कंट्रोल करके रखा, देख रहे हो, और फिर मतलब इस ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे रेगुलेट किए हुए, इंटरनल लेवल कांस्टेंट है, बट और कम हुआ तो फिर वो कंफर्म करने लगा। यानी अब जो इंटरनल मतलब एक्सटर्नल वही इंटरनल, जो इंटरनल वही एक्सटर्नल। बट उसके बाद देखो, एक्सटर्नल भले ही आप बढ़ा रहे हो लेकिन इंटरनल कांस्टेंट है। तो ये होता है पार्शियल रेगुलेटर्स। उसके अलावा और भी तरीका होता है, बट देखते हैं। ये याद रखना होता है, रेगुलेट, इसमें क्या होता है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मींस लाइक थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन।
हम अपने बॉडी में सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करते हैं, जिसमें सारे बर्ड्स, मैमल और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स भी रेगुलेट करते हैं, यानी अपना बॉडी के इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। कन्फर्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के इंटरनल थर्मल या ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाते, वैसे ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट अबाउट 99% ऑफ एनिमल और सारे प्लांट्स वैसे ही होते हैं। क्योंकि थर्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका लार्ज सरफेस एरिया है उनके वॉल्यूम से ज्यादा, वो मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, और इसीलिए तुम देखोगे पोलर रीजन्स में बहुत रेयर बात है, पोलर रीजन्स में ये सब नहीं मिलते। ठीक है, अगेन इज, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर लोकलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में बहुत बार पूछा हुआ है। फॉर लोकलाइज शॉर्ट आउटबर्स्ट, अगर बहुत कम समय के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन आए, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं तुमको कि भाई एक दिन के लिए यहाँ पे इस पटना का टेम्परेचर 100 डिग्री होने वाला है, तुमको पता है तुम 100 डिग्री नहीं झेल सकते, तुम क्या करोगे, तुम दो ऑप्शन निकालोगे, या तो सस्पेंड कर लोगे अपने आप को कहीं घर वार में, जमीन के गाड़ वाड़ से सेव कर लोगे, एक दिन ही तो रहना है, एक बड़ा सा चेम्बर बना है घर के नीचे, वहीं रह गए, ऊपर में टेम्परेचर 100 है लेकिन एक दिन तो रह ही सकते हैं ना। दूसरा, माइग्रेट कर गए, तब बहुत बुरा वक्त है, चलो नानी के यहाँ से घूम के आते हैं, पटना से बाहर चले जाएंगे। इट इज लाइक दिस। सो फॉर वेरी लोकलाइज्ड, बहुत छोटे जगह के लिए और बहुत छोटे समय के लिए होगा स्ट्रेसफुल कंडीशन का, तो ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं माइग्रेशन और सस्पेंडेड ग्रोथ। माइग्रेशन क्या होता है, तो माइग्रेशन आप सब जानते हैं, टेम्पररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू मोर फेवरेबल एरिया इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर, स्पॉनिंग और क्लाइमेट। जैसे अगर कुछ समय के लिए मूवमेंट हो रहा हो, जहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल एरिया, बहुत बुरा समय है, वहां से फेवरेबल एरिया में जहाँ पे खाना मिले, शेल्टर मिले, स्पॉनिंग, यहाँ पे आप रिप्रोड्यूस कर सके या फिर क्लाइमेट अच्छा हो, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन फ्रॉम साइबेरिया टू कोलदेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, ये 2000 आई गेस 14 या 15 में पूछा है। ठीक है, हमको इसलिए याद है क्योंकि टेस्ट में पूछा था और हमको नहीं याद था। तो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो साइबेरिया से माइग्रेट करके कोलेडो नेशनल पार्क राजस्थान में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज माइग्रेशन, आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, ठंडा के दिन में अभी बहुत सारा आया हुआ होगा। नेक्स्ट इज लोकोस्ट माइग्रेट्स फॉर फूड। लोकोस्ट एक एनिमल, आई कैन से फिश टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड के लिए माइग्रेट करता है। सैल्मन मछली है, सबसे महंगी मछली में से एक है, ये स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करती है। स्पॉनिंग यानी यस, अंडे देने के लिए। फिर उंगली गेट, ये नाम तुम्हारे लिए थोड़ा नया है बट हम बोलेंगे याद रख लो, ये 11th में पढ़ना था पहले एनिमल किंगडम में, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बाहर का है लेकिन एक समय में बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उंगली गेट माइग्रेशन फॉर फूड इन अफ्रीका, आप इसका एग्जांपल में जेब्रा समझ सकते हो, जेब्रा उंगली गेट है, जेब्रा हॉर्स ये सब, तो उनका माइग्रेशन फूड के लिए होता है। आई गेस आज के लिए इतने पे छोड़ दे रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग ये चार देखेंगे, फिर एडाप्टेशन देखेंगे, फिर पॉपुलेशन देखेंगे। अब छोटा छोटा पार्ट है, मैथमेटिक्स से सब आएगा, आसान हो जाएगा। उधर यार कचरा कर दिया, पॉपुलेशन इंटरैक्शन 8 9 से बहुत आसान है, 9 से बहुत आसान है। मेन जो दिक्कत है 9 तक में है और आज हम लोग 5 पढ़ लिए हैं, इधर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं 2 क्लास से 3 क्लास और लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।